اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ یہ بیان ہے سید امین القادری صاحب کا۔ علم والا اور بغیر علم والا کیا دونوں ایک ہی برابر ہیں؟ چلیے بیان کو سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علم کو کتنا عظیم قرار دیا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اسلام جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے نسب اور رنگ کا فرق ختم کیا۔ لیکن اللہ اکبر، دو مقام ایسے آتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر برابری کا معاملہ ختم فرماتا ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے، تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے، ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے، یا تو اچھے کپڑوں میں ہے، یا تو گناہوں کے اندر ہے، یا تو برائیوں کے اندر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی۔ اللہ اکبر، آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے، ان کی علمی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے، آج بھی احادیث کے اندر وہ
अनमिट नकूश के तौर पर वो आज भी किताबों के अंदर जगमगाते नजर आ रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, क्या आपने नहीं फरमाया था कि आप सिला रहमी करते हैं, आप जो है वो यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं। इस तरीके की ये जुमले कोई अनपढ़ खातून तो नहीं कह सकती। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कैसा इल्म अता किया था, कैसी समझ अता की थी। और उसके बाद जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक की बारी आती है, तो ये वो मुकद्दस खातून है जिनको मुफ्ती चार मिल्लत कहा गया है। अल्लाह अकबर, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता है। और अल्लाह अकबर, इनके बारे में मुहद्दिसीन और फुक़हा ने लिखा है कि आप मुज्तहिद सहाबियात में से थी, आप इल्म के मामले में दर्जे इज्तिहाद को पहुंची हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इल्म अता किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी वास्ते के आपने डायरेक्ट इल्म हासिल किया। और इल्म हासिल करने के बाद आपने 50 साल तक के उम्मत की रहनुमाई फरमाई। बल्कि उलमा फरमाते हैं निस्फ दीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से मिला है। और इसकी तशरीह में कहा गया, अगर अल्लाह अकबर कमियत के एतबार से न सही लेकिन कैफियत के एतबार से तो निस्फ दीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से हमें नसीब हुआ। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐसी कोई इल्मी मुश्किल मैंने नहीं पाई जो हम मुश्किल लेकर के उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की चौखट पर पहुंचे और उन्होंने उसको हल फरमाया हो। हर मुश्किल इल्म की हम सैयदा आयशा की चौखट पे हल कर लिया करते थे और वो हल मसले को हल फरमा दिया करती थी। अंदाजा फरमाए, जब औरों की औरतें जिहालत की वादियों में भटक रही थी, उस वक्त मेरे रसूल की चहीती ज़ौजा महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन अल्लाह अकबर मुफ्ती चार मिल्लत के हवाले से दुनिया के दरमियान मुतारफ थी। अल्लाह अकबर, हजारों शागिर्द हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के, जो पर्दे के पीछे से कभी कुरान मुकद्दस की तफसीर के हवाले से सवाल करते, आप इत्मीनान बख्श जवाब अता करती। अहदीस के हवाले से रिवायत करने वाले, अल्लाह अकबर, फरमाया गया मुहद्दिसीन लिखते हैं तकरीबन 299 लोगों ने उम्मुल मोमिनीन से रिवायत किया, जिसमें से 65 खवातीन हैं जो अम्मा आयशा सिद्दीका की शागिर्दा हैं। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाए 2210 अहदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से रिवायत की गई है। अंदाजा तो फरमाए, बल्कि बहुत सारे मामलात में उम्मुल मोमिनीन जिस तरह से सवाल अल्लाह के रसूल से किया करती थी, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के 3 बच्चे बचपने में इंतकाल कर जाएं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। मुमकिन है इस महफिल के अंदर, इस मजमे के अंदर बहुत सारी बहनें ऐसी होगी, बहुत सारी खवातीन ऐसी होगी कि अल्लाह अकबर उनके बच्चों का इंतकाल हो गया होगा, उनकी गोद खाली हो गई होगी, उनकी गोद उजड़ गई होगी। रहमतुल्लिल आलमीन जख्मों पर किस तरीके से मरहम रख रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 नन्हे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएंगे। 3 बच्चों की बात आई, उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी, आपने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो 2 बच्चे
बच्चे भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर आपने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक ही बच्चा इंतकाल कर जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर एक बच्चा भी इंतकाल कर जाए तो वो एक बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बसीरत पर, इल्मी बसीरत पर। फिर अर्ज करती या रसूल अल्लाह, अगर बच्चा पैदा ना हो और माँ के पेट से वो बशक्ले हमल ही जाए हो जाए, कच्चा बच्चा ही गिर जाए, तो अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश में आता है और इरशाद फरमाते हैं, आयशा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के इल्म का आलम ये था। अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारे मामलात के अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की रहनुमाई करती नजर आती है। पर्दे के पीछे से सहाबा ताबईन आपके पास आकर के इल्मी इस्तिफादा किया करते थे और आप जो है अल्लाह अकबर सैकड़ों लोगों की उस्ताद की हैसियत से मुतारफ थी और आप फतवा भी दिया करती थी और आप इज्तिहाद भी किया करती थी। इसी तरह से हुजूर की अज़वाजे पाक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम सहाबिया भी हैं और उम्मुल मोमिनीन भी हैं कि अल्लाह अकबर, जिनको भी बहैसियत मुफ्ती जो है वो और फकीहा सहाबियात के अंदर आपको शुमार किया गया है। अल्लामा ज़हबी आपको फकीहा सहाबियात में शुमार फरमाते हैं और आपका इल्मी मामला कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये है कि अल्लाह अकबर तकरीबन 78 सहाबा किराम ने आपसे रिवायत किया है और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की फिक़ही और इल्मी बसीरत का आलम यह है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के बाद सहाबा से फरमाया एहराम खोल दो, तो उस वक्त सहाबा ज़ियारत काबा के शौक में इतने मुस्तगरक हो गए थे, ज़ियारत काबा के शौक में इतने गर्क हो गए थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहराम खोल दो, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ न हो सकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा तुम्हारी कौम का हाल देखो। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा साहिबे वही मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये एहराम नहीं खोलते और बाल नहीं मुड़ाते तो आप अपने बाल तरशवा कर एहराम से बाहर आ जाएं। जिस वक्त ये आपको एहराम से बाहर देखेंगे ये खुद भी एहराम से बाहर हो जाएंगे। और तारीख की औराक गवाह है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के मशवरे पर अल्लाह अकबर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बालों को तरशवा कर जब वो एहराम से बाहर होते हैं तो बगैर बोले सहाबे किराम भी अल्लाह अकबर ओ ज़ौक़ से बाहर आकर काबे की तरफ तवज्जो करते हैं और सब लोग जो है एहराम से बाहर आ जाते हैं। ये उम्मतुल मोमिनीन का इल्म था। इसी तरह से बयानात सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट से मैं अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।